आसान टॉपिक है, क्विकली समझ जाएगा। तो व्हाट इज हेलिक्स? कभी ये देखा है, कोई स्क्रू देखा है? स्क्रू पे थ्रेड्स रहता है। थ्रेड्स कैसे रहता है? इट्स अलोंग इट्स पेरीफेरी, पूरा उसके सर्कुलर बार के पेरीफेरी पे रहता है, लेकिन इट इज ईच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। कैन यू सी दिस पीपीटी? हेलिक्स वाला दिख रहा है सबको सर्कल? हाँ सर। हाँ, so it is on its periphery and it is inclined at some angle, so that curve which is traced is called as helix. Okay, the cylindrical helix can be defined as a helix traced on a vertical cylinder of revolution or a thumb line of this cylinder. So इसके पेरीफेरी पे अगर घूमेगा तो मतलब ये अगर हेलिक्स है तो मैं इसको हेलिक्स दिखा दूँ तुमको, पहले कैसे दिखेगा, फिर इसका प्रोसीजर समझ लो। एक थ्रेड है, थ्रेड पे कैसे घूमेगा? ये पूरा पेरीफेरी पे घूमेगा ऐसे। सो दिस इज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ हेलिक्स। तो ये कैसे ड्रॉ करना है? मतलब ये पॉइंट सिलेंडर पे साइमल्टेनियसली पेरीफेरी पे भी घूम रहा है और साइमल्टेनियसली वर्टिकल भी जा रहा है। देयर आर टू मोशंस इन्वॉल्व्ड. दिस इज सी स्लाइड, एवरी टाइम इट इज मूविंग अपवर्ड, एवरी टाइम इट इज मूविंग अपवर्ड एंड इट इज आल्सो मूविंग ऑन द पेरीफेरी। ये पोर्शन सिलेंडर के सामने से और ये जो पोर्शन है सिलेंडर के पीछे से, ये नहीं दिख रहा है। So first draw a circle, divide the circle into 12 parts, into 4 parts. Then you can divide the circle into 12 parts. Okay, you can divide the circle into 8 parts also, but if you divide it into 12 parts, you will get more points and the accuracy of the curve will be more. Now this is representing the top view of a circle and this is representing the this is representing the top view of a cylinder and this is representing front view of a cylinder. So once we have done with this, अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ। सी 1 corresponds to A, 2 corresponds to B, 3 corresponds to C, 4 corresponds to D, 5 to E, 6 to F, 7 to G, 8 to again H, 9 to I and so on. तो ये 12 के 12 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर दिए। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्टर्स फिर से ऊपर तक लेके गए यहाँ तक, और इनको भी हमने नाम दे दिया अभी लाइक दिस। ए की जगह पे ए डैश आएगा, बी के जगह पे बी डैश आएगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट व्हाट विल वी डू? वी विल डिवाइड दिस इनटू 12 पार्ट्स। सी लाइक दिस। So we divided the front view into 12 parts and now we'll number it. Okay. As we started with 1 dash, we are having 12 dash to 1 dash here. Again 1 dash has come. Okay. Or if you start 1 dash with this as 1 dash, then this will be 12 dash like this. Now, see this सर is थोड़ा पीछे आ सकते हो क्या सर? हाँ समझा नहीं सर स्टेप को। सर वो 12 हमने 12 लाइन बनाया ना सर। हाँ यहाँ तक ठीक है। Now all these points are on the base of the cylinder. All these points are on the base of the cylinder, and these points are also on the top of the cylinder. So this is representing the base of the cylinder, and this is representing the top of the cylinder. Now A to 1 to 12, that is A to L.
A to L. So all these points are projected on the bottom of the cylinder in the front view like this, and these points are also projected on the top surface of the cylinder, and we name it as like this. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं सर. Now what will we do? We will divide this vertical line into 12 parts. We know how to divide a line. We will draw a line, then mark 12 arcs, and then each point will be joined. So that complete process which I had explained in earlier practical, that I have not explained here. I have directly divided this into 12 parts, and I have drawn horizontal lines like this. First part, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, and this is the 12th one. Clear till here? हाँ सर, मतलब सर ये हमने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लिया ना सर, ऑफ द सेम लेंथ. हाँ नहीं, ऐसे नहीं. हाँ मैंने ऐसे किया, लेकिन तुमको कैसे डिवाइड करना है? ये 1 2 3 ऐसे 12 पार्ट में डिवाइड करना है ना. तो यहाँ पे ये पॉइंट इसको ज्वाइन होगा, ये इसको ज्वाइन होगा, जैसे हमने देखा था ना लास्ट टाइम. So basically what I want on this vertical line, I want points. So this is first point, this is second point, third point. ये प्रोसीजर मैंने स्किप किया यहाँ पे because this was already explained. और फिर horizontal lines ड्रॉ किया. Now we'll name this. इसको नंबर दिया देखो. पहला पॉइंट है हमारा, ये 1 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये 1 पॉइंट ये है, ये 1 पॉइंट बेस पर है ना 1 पॉइंट, इसीलिए आई स्टार्टेड विद 1. मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिया, यहाँ से 1 लिया. नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, दिस पॉइंट 1 विल मूव वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये 2 के लाइन पर आएगा, और साथ ही साथ ये सर्कल पे भी रोटेट होगा, ये सर्कल पे भी रोटेट होगा और वर्टिकली ट्रैवल भी करेगा. मतलब देयर आर 2 मोशंस इन्वॉल्व्ड. वन इज रोटेटिंग अलोंग द पेरीफेरी एंड सेकंड इज मूविंग अपवर्ड. तो देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मूव हो गया. देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3. मतलब ये 1 से पहले 2 मूव हुआ, अब इस 2 से 3 मूव हो रहा है. साथ ही साथ वर्टिकली भी 1 से 2 मूव हुआ और 2 से 3 इट विल मूव. सो इट विल बी प्रोजेक्टेड लाइक दिस. Now it will move in vertical direction, vertically upward, and also it will move from 3 to 4. 4 कहाँ पर है? यहाँ पर. इसका intersection ये आ गया. Again it will move from 4 to 5 in vertically upward direction, and also it will move from 4 to 5 along the periphery of the cylinder. So every time it is moving vertically upward, and it is also moving on the periphery of the cylinder. मतलब आपने जो लेटर्स असाइन किए वो पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर वापस राइट टू लेफ्ट आएगा ना सर? करेक्ट करेक्ट. सो इट इज मूविंग लाइक दिस. ये 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 7 8 9 10 11 12 1. सो हाफ ऑफ दिस पोर्शन, ये जो 1 से 7 तक लेके पोर्शन है, ये कहाँ पे है? इट इज बिहाइंड. इट इज नॉट, ये सिलेंडर के पीछे से है, विच वी कैन नॉट सी. एंड 1 से लेके ये 1 to 12 12 to 11 to 10 to 9 to 8 to 7, this is visible. Okay, this is visible. So if I draw the curve, then this curve will be like this. इसको join करेंगे, इसी के लिए फ्रेंच कर्व यूज करेंगे हम. So this curve is helix. तो आउट ऑफ दिस ये 1 2 3 4 5 6 7 वाला जो पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमको दिखेगा नहीं. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये सिलेंडर के पीछे से है. सो दिस विल बी ड्रॉन एज डॉटेड लाइन. सो दिस हैज टू बी ड्रॉन बाय डॉटेड लाइन. ओके, कौन सा डॉटेड लाइन आएगा? दैट आई हैव टोल्ड यू. ये पीछे वाला डॉटेड लाइन यहाँ पे आएगा. So this will be drawn like this. यहाँ तक. और फिर ये सामने वाला पोर्शन है, ये हमको दिख सकता है. सो ये आएगा कंटिन्यूस. सो दिस इज हेलिक्स ऑफ अ सिलेंडर. इसी तरह थ्रेड्स जो बनते हैं, स्क्रू थ्रेड्स इसी तरह बनते हैं, इसी प्रोसेस से वो बनता है. So as far as this construction of helix is clear, is it clear, understood? Yes sir. Yes, sir.
सर एक्सेल का एंगल कितना होगा सर? किसका एंगल? किस चीज का एंगल? सर इसका एंगल कितना होगा सर, ये डॉटेड का? वो एंगल नहीं है, दैट इज नॉट एंगल. सी इट, हाउ वील गेट दिस पॉइंट. दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 डैश एंड 2. इंटरसेक्शन, ये 3 और 3 का इंटरसेक्शन, ये पॉइंट 4 और ये 4 का इंटरसेक्शन, ये पॉइंट. ये कोई एंगल नहीं मिल रहा है हमको, इंटरसेक्शन से हमको पॉइंट्स मिल रहा है. बिकॉज इट इज हैविंग साइमल्टेनियस मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज अलोंग द पेरीफेरी. Times. See, involute of square. See, it's very easy. स्क्वायर का इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है तो व्हाट विल वी ड्रू, विल ड्रॉ अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे देते कुछ भी, ए बी सी डी. क्वेश्चन गिवन इज ड्रॉ इन्वॉल्यूट ऑफ स्क्वायर. सो फर्स्ट व्हाट विल वी ड्रॉ, वी विल ड्रॉ अ स्क्वायर. After drawing the square, from this line, horizontal line, draw from this horizontal line, draw a line. What is the length of this line? 80 mm. ये 80 कहाँ से आया? Because the square side is 20 mm. So 20 plus 20 plus 20 plus 20 is 80. So draw a line. जनरली उसमें क्या करते हैं हम, वी ड्रॉ टेंजेंट लाइन, है ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे टेंजेंट तो नहीं है, मतलब टेंजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, लाइन विच इज ड्रॉन अलोंग BC, अलोंग BC. okay, what is the length? 80 mm. then what we do, if you remember this, हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे, करेक्ट. टेंजेंट्स ड्रॉ किया सब जगह से, ऐसे ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ किया था. फिर ये पॉइंट P है, फिर यहाँ पे P1 डैश लिया था, यहाँ पे P2 डैश लिया था, यहाँ पे P3 डैश, यहाँ पे P1 डैश लिया था, P2 डैश लिया था, P3 डैश लिया था, P4 डैश लिया था. ऐसे करके करके आए थे ना, ऐसे लाइक दिस. So here also we are doing the same thing. But we cannot draw tangent line because this is not a circle. So what are we doing? We are drawing lines. So हमने एक line draw कर लिया. अब इसका लेंथ कितना है? 80 mm. मतलब 80 mm is covering the entire perimeter of the square. Okay. फिर दूसरे साइड में एक पेरीमीटर से एक डिस्टेंस कम कर दिया, तो वो डिस्टेंस कितना कम हो गया? दिस इज 60 mm. फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ये इसका लेंथ कितना हो गया? 40 mm. और ये फोर्थ लाइन है स्क्वायर का, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 20 mm. मतलब from every edge we will draw a line, and then the length of that line will be reduced by distance equal to side of the square. जितना साइड है उतना डिस्टेंस कम करते जाओ. या फिर उल्टा करो, ये पहले 20 mm का ड्रॉ करो, ये 40 का ड्रॉ करो, ये 60 का ड्रॉ करो, ये 80 का ड्रॉ करो. सो टोटल कितना हो गया पेरीमीटर? 80. तो किसी एक लाइन से 80 ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट हमको कहाँ से मिलेगा? दूसरा पॉइंट यहीं पे मिलेगा. तो ये देखो, पूरा अगर 80 है, उसमें से एक चला गया तो बचा कितना? 60. तो यहाँ से 60 का लाइन ड्रॉ किया. फिर यहाँ पे कितना बचा? अभी दो साइड चला गया, सो डोर साइड मतलब 20 + 20 40 चला गया, तो 80 में से 40 गया तो बचा कितना? 40. सो इसलिए 40 ड्रॉ किया, और फाइनली बचा कितना? 20. सो इफ यू जॉइन ऑल दिस you will get a curve, and that curve is called as involute, and it will be a curve like this. It will be a curve like this. Similarly लाइन फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे सर? हाँ, yes, continue. पूछो. ये लाइन फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे ना सर, या Nothing. कर्व से करेंगे? नथिंग फ्री हैंड. अभी मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो ऑल दिस आर दिस लाइन विल बी ड्रॉन बाय कंपास. देखो ये कितना है? 80. ये कितना है? 80. सो विथ दिस एज सेंटर यू कैन ड्रॉ एन आर्क. दिस इज 80, दिस इज ऑल्सो 80. 60 + 20 80. ठीक है,
देन कम एट पॉइंट डी पॉइंट पे आते हैं, तो ये पॉइंट पे देखो ये डिस्टेंस कितना है वर्टिकल, दिस इज 60 and this is how much, 40 plus 20, this is also 60, so you can draw this arc. Similarly come to this point, this is how much, 40, this is 20, this is 20, so this can be drawn, and come to this point, this is 20, this is 20, so you can draw this arc.